Okay, everyone. Today we are going to start with three hinged arches. Okay. So what do we mean by three hinged arches? How the structure is, how the structure behaves, how the forces are transferred in the structure, and what are the different names, what are the different components of those forces, and what are the components called. All these things we are going to discuss today. Okay. So the basic shape of a three hinged arch is something like this. Okay. Now over here we are providing one hinge supported one end and one hinge supported another end. And also if you see, we are providing one internal hinge. Okay. So if you count, the number of hinges over here is 1, 2 and 3. Okay. So there are different types of arches. Okay. There is one you can say that this is first type 3 hinged arch. Okay, if you see, this is a 3 hinged arch. Then there can be a 2 hinged arch. Okay, and the third one is a fixed arch. Okay, now what is the difference between a 3 hinged arch, 2 hinged arch and a fixed arch? Okay, all depends on the determinancies. Okay, and also on the number of reactions which are going to be developed in this particular beam. Okay, is everybody able to see the screen? Are you able to understand this? Is my voice clear to you? Yes, sir. Okay, so what is happening over here is that I'm introducing to you a new structure over here. Can you see this structure? This is an arch. आर्च आप लोगों ने कई जगह पे देखा होगा, आपने कई ब्रिजेस के नीचे आर्चेस देखे होंगे, कई बार कोई आप चर्च विजिट करते हैं या कोई ओल्ड स्ट्रक्चर विजिट करते हैं तो उसके जो गेटवेज होते हैं वो गेटवेज के ऊपर आपने आर्चेस देखे होंगे. ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि आर्च हमारी नज़र के अंदर, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर की नज़र के अंदर मैथमेटिकली या स्ट्रक्चरली अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आर्च का मतलब क्या है? एक ऐसा मेंबर के जो स्ट्रेट नहीं है. आर यू गेटिंग इट? जैसे आपने ट्रसेस सॉल्व किए थे तो ट्रस के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से हिंज से जॉइंट किए हुए अलग अलग मेंबर्स थे, लेकिन वो मेंबर्स कैसे थे? स्ट्रेट लाइन थे. बराबर. यहाँ पे किस तरीके से मेंबर जो है वो कर्व्ड रहेगा. नाउ this curve can be a parabolic curve, this curve can be a circular curve. Okay, currently जो curve की हम लोग बात कर रहे हैं ये parabolic है. Okay, इसमें circular arches भी एक तरीके का टाइप आता है. Okay, that is also one of the type. So यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं इस particular arch की, ये arch के अंदर आपका एक सपोर्ट है, एक दूसरा सपोर्ट है, दोनों सपोर्ट इसके हिंज सपोर्ट है. तो दो हिंजेस यहाँ पे हो गए और एक हमने इंटरनल हिंज प्रोवाइड किया है. डू यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल हिंज? इंटरनल हिंज क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज एन इंटरनल हिंज? एनीवन? डू यू नो व्हाट इज एन इंटरनल हिंज? No one knows. Not even the diploma people know that what is an internal hinge. Okay, assuming that you don't know anything, so try to understand that this part, suppose let us name it as A, this end is A, this end is B and this end is C. So AC and CB, these two are solid members. AC और CB जो है ये solid members है. Solid का मतलब पूरे तरीके से एक सिंगल मेंबर है, एक ही मटेरियल के बने हुए हैं. इनका जो EI का वैल्यू हम लोग बोलेंगे ना, EI का वैल्यू ये सेम है थ्रू आउट दैट मेंबर. ओके, तो ये सेम मेंबर है. सिमिलरली CB भी एक सिंगल सॉलिड सेम मेंबर है. अभी अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम विल लुक समथिंग लाइक दिस. ओके, पहले हम पूरे आर्च का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं.
तो पूरे आर्च का फ्री बॉडी डायग्राम जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे ए और बी के सपोर्ट को हम लोग रिमूव कर देंगे. सो ओके, तो सपोज दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट. ए पॉइंट के ऊपर जो रिएक्शंस डेवलप होगी, दैट रिएक्शंस आर गोइंग टू बी VA, देन HA. Over here, the reactions that are going to be developed are going to be VB and HB. Because these are unknowns and I don't know their actual values and reactions, so they are going to be termed like this. Okay. तो अगर मैं पूरा ट्रस लेता हूँ, पूरा ट्रस ABC, ये पूरा का पूरा 3 हिंज्ड आर्च अगर मैं कंसिडर करता हूँ, तो 3 हिंज्ड आर्च के अंदर यहाँ से मैंने दोनों के सपोर्ट हटाए और यहाँ पे अभी हाउ मेनी नंबर ऑफ अननोन्स कैन यू सी ओवर हियर? 4. How many number of unknowns? 4. Okay. And how many number of equations do you have? 3. Are you sure that you have 3? इंटरनल हिंज जो होती है, ये इंटरनल हिंज एक बहुत स्पेशल चीज होती है. ये इंटरनल हिंज आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर एक कंडीशन डेवलप करके देती है. वो कंडीशन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आप जैसे कैंची होता है ना, कैंची का आपका बीच में जो एक हिंज कनेक्शन होता है, इंटरनल हिंज भी सिमिलर तरीके का कनेक्शन होता है. दैट मीन्स ए से सी का कर्व्ड वाला पार्ट और बी से सी वाला कर्व्ड वाला पार्ट, ये दोनों जो सी पॉइंट के ऊपर ज्वाइन हुए हैं, ये जॉइंट जो कनेक्शन है, दैट कनेक्शन इज हिंज्ड कनेक्शन. दैट मीन्स इट इज फ्री टू रोटेट एट दैट पॉइंट. ओके. नाउ कमिंग बैक टू नंबर ऑफ इक्वेशन पार्ट. एक आपके पास में कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है. कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करते हैं तो हमारे पास में कितने इक्वेशन आते हैं? समेशन Fx, समेशन Fy एंड समेशन ऑफ मोमेंट. ये 3 यूज करके हमारे पास में कितने इक्वेशन आते हैं? 3 इक्वेशन. प्लस एक इक्वेशन आता है हमारे पास में बिकॉज ऑफ द इंटरनल हिंज. बिकॉज ऑफ द इंटरनल हिंज, इंटरनल हिंज की वजह से हमारे पास में एक इक्वेशन और आ जाता है. ठीक है. दिस वन इक्वेशन दैट वी गेट एक्स्ट्रा इज बिकॉज ऑफ द इंटरनल हिंज. इंटरनल हिंज क्या कंडीशन प्रोवाइड करता है कि जिस पॉइंट के ऊपर इंटरनल हिंज है, उस पॉइंट के ऊपर हम लोग हमारी ट्रस को ब्रेक कर सकते हैं और ब्रेक करने के बाद में हम लोग उसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. ओके. तो हमारे पास में एक और कंडीशन या एक ऐसी और जगह मिल जाती है जिस जगह से हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, या फिर कि उस जगह के लिए समेशन ऑफ मोमेंट एट दैट पॉइंट इक्वल टू 0 डाल के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ओके. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब हम समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इक्वल टू 0 की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप मोमेंट लेंगे, यहाँ पे हम लोग अगर ब्रेक करेंगे तो सी व्हाट विल हैपन. अभी मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ. लाइक दिस पार्ट इज डिफरेंट एंड दैट पार्ट इज डिफरेंट. तो ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक सी से लेके ए, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको सेपरेट कर देते हैं सी से लेके बी. तो ए के ऊपर हमारे क्या रिएक्शंस थे? दिस वाज VA, this was HA, and similarly यहाँ पे हमारे पास में HB and VB. यहाँ पे पॉइंट C के लिए there is going to be VC, HC, ओके. तो ये जो हमारे पास में पॉइंट है, ये A पॉइंट, ये C पॉइंट को हमने सेपरेट किया और ये B पॉइंट. नाउ C पॉइंट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बिकॉज इट इज एन इंटरनल हिंज, बिकॉज द 2 पॉइंट्स आर जॉइंड यूजिंग अ हिंज, दैट मीन्स एट दैट पॉइंट रोटेशन इज अलाउड. तो C पॉइंट पे अगर रोटेशन अलाउड है तो वहाँ पे रोटेशन वाला रिएक्शन डेवलप नहीं होगा. वहाँ पे कौन से रिएक्शन डेवलप होंगे? क्योंकि x और y डायरेक्शन में ही मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, तो only reactions that will be developed will be HC and VC. If you see, HC and VC are reactions that are equal and opposite to one another. Okay, क्योंकि वो C पॉइंट के ऊपर ही है और C पॉइंट पे हमने उसको सेपरेट किया, तो C पॉइंट के ऊपर equal and opposite reactions रहते हैं. So when trying to solve an equation, you can find that these components are common in both the free body diagram. ये आपका FBD of AC है, ये आपका FBD of BC है. तो ये दोनों फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर C के जो रिएक्शंस है ये कॉमन है. तो
इसकी वजह से, ये इस इंटरनल हिंज की वजह से एक और कंडीशन आपको मिलती है जिसके अंदर आप यहाँ के इक्वेशन और यहाँ के इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हो, या फिर इसका वैल्यू उसके अंदर सब्स्टिट्यूट, उसका वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट, इस तरीके से रीसब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, बिकॉज यू हैव सम कॉमन वेरिएबल्स. बिकॉज ऑफ दिस कॉमन वेरिएबल्स इट इज पॉसिबल टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू फ्रॉम वन टू अनदर. ये कॉमन वेरिएबल आपके पास में कैसे मिलते हैं? बिकॉज ऑफ द इंटरनल हिंज. ओके, तो इंटरनल हिंज की वजह से यहाँ पे. नाउ कमिंग बैक टू द डिस्कशन दैट वी आर हैविंग अर्लियर अबाउट द टाइप्स ऑफ आर्चेस. सो दिस इज एन आर्च A, B. There is an internal hinge over here at the top, which is C. Okay, and the total number of hinges, if you count, that is A, B, C. Total 3 hinges are there. So this type of arch is called 3-hinged arch. Okay. Now 3-hinged arch, 2-hinged arch और fixed arch में फर्क क्या है? फर्क है मेनली नंबर ऑफ अननोन्स के अंदर. अगर हम लोग 3-hinged arch की बात करें तो हमारे पास में 4 अननोन है, 3 हमारे पास में कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, एक कंडीशन है बिकॉज ऑफ द इंटरनल हिंज. तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस दैट आई हैव, दैट नंबर ऑफ इक्वेशन becomes 4. So 4 unknowns, 4 equations. That means the 3-hinged arch is a determinate. Okay, this is a determinate structure. डिटरमिनेट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि इस स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए मुझे कोई अजम्पशन करने की या किसी कॉम्प्लिकेटेड मेथड में जाने की जरूरत नहीं है. मैं सिंपल मेथड से, सिंपल तरीकों से एक 3-hinged arch को सॉल्व कर सकता हूँ. नाउ व्हाट अबाउट 2-hinged arch? व्हाट डू वी मीन बाय 2-hinged arch? 2-hinged arch के अंदर समझो हमने सी पॉइंट पे कोई इंटरनल हिंज नहीं रहेगा. ए से लेके बी तक पूरा कंप्लीट एक ही आर्च रहेगा. टोटल कितना आर्च रहेगा? एक ही आर्च रहेगा. तो एक आर्च अगर रहेगा ए से लेके बी तक, तो अब हमारे पास में नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं? 1 2 3 4. और नंबर ऑफ इक्वेशन कितने रहेंगे? क्योंकि इंटरनल हिंज नहीं है ना अभी हमारे पास में, तो हमारे पास में नंबर ऑफ इक्वेशन विल बी ओनली 3. सो दिस 2-hinged arch is indeterminate. इनडिटरमिनेट. भाई कितनी इंडिटरमिनेंसी रहेगी इसकी? इसकी इंडिटरमिनेंसी रहेगी, स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी हैज 1. डू यू गेट इट? आपका स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी आई थिंक हैज बीन ऑलरेडी टॉट टू यू बाय ज़हीर खान सर. सो यू अंडरस्टैंड कि मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे इनडिटरमिनेट कितनी इंडिटरमिनेंसी से रहेगा. तो द टोटल अमाउंट ऑफ इंडिटरमिनेंसी दैट यू गेट, स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, क्योंकि हम अभी स्टैटिक एनालिसिस कर रहे हैं, डायनेमिक एनालिसिस तो कर नहीं रहे हैं. तो स्टैटिक एनालिसिस के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कितना उसका स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी है. तो स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी कितना रहेगा? नंबर ऑफ अननोन्स माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन. सो नंबर ऑफ अननोन्स आर 4 बिकॉज ऑफ द 4 रिएक्शन HAVA, HB, VB, and the number of equation, because we don't have an internal hinge, will be only 3, which is summation fx0, summation fy0, and summation of moment. Okay. Now what about fixed arch? What do you understand by fixed arch? Fixed arch का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पे ये आपका नॉर्मल सपोर्ट था ना, तो उसकी जगह पे मैं इसको फिक्स सपोर्ट कर देता हूँ. ये सपोर्ट जो दोनों फिक्स हो जाएंगे. नाउ फिक्स्ड आर्च इज बेसिकली अ रियलिस्टिक अप्रोच. आप अगर एक्चुअल आर्चेस को देखेंगे तो एक्चुअल आर्चेस दोनों एंड पे फिक्स होते हैं, बीच में कोई इंटरनल हिंज नहीं होता, और उसको हम एनालाइज करते हैं. ठीक है. तो फिक्सिटी की वजह से क्या होगा? यहाँ पे भी आपको नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा, यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा. ठीक है. और यहाँ पे आपको पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा. ठीक है. वो ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट किस तरीके से आता है, हम लोग इस पे किस तरीके से लोड अप्लाई करते हैं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे. ओके. आपका जो सिलेबस है अभी फिलहाल में, वो सिलेबस के अंदर 3-hinged arches है, जिसके अंदर आपको डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल थ्रस्ट, रेडियल शियर एंड बेंडिंग मोमेंट फॉर सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल पैराबोलिक 3-hinged arches की बात हो रही है. ठीक है. तो सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल 3-hinged arches. Now if you see, I have given you 2 differentiations over here of 3-hinged arches. Arches के 2 differentiation मैंने आपके सामने रखे हैं. एक differentiation है depending on the indeterminacies. यहाँ पे पहले वाले केस में इंडिटरमिनेंसी 0 है, दूसरे वाले केस के अंदर जो इंडिटरमिनेंसी है वो 1 है, थर्ड वाले केस के अंदर जो इंडिटरमिनेंसी है वो 3 है. अगर फिक्स्ड आर्च की मैं बात करूँ तो फिक्स्ड आर्च के अंदर यहाँ पे 3 अननोन रहेंगे, यहाँ पे 3 अननोन रहेंगे. ठीक है. और नंबर ऑफ इक्वेशन जो हमारे पास में है वो 3 है. तो 3 + 3 6 अननोन्स एंड 3
इज द नंबर ऑफ इक्वेशंस। सो यहाँ पे कितना इंडिटरमिनेंसी आ जाएगा हमारे पास में, 3 स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी आ जाएगा फॉर फिक्स्ड आर्चेस। ओके, तो फिक्स्ड आर्चेस को सॉल्व करना और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड चीज को भी सॉल्व किया जा सकता है लेकिन इट इज टाइम कंज्यूमिंग, और उसको सॉल्व करने के लिए थोड़े से मेथड्स होते हैं। वो मेथड्स भी आपको समझ जाएंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व, बट करंटली हमारे सिलेबस में सिर्फ ये पहला वाला है, 3 हिंज्ड आर्च। ओके, 2 हिंज्ड आर्च एंड फिक्स्ड आर्च आर नॉट इन आवर सिलेबस राइट नाउ। ओके, देन in this syllabus we are talking about supported at same level and supported at different level. Now symmetric और unsymmetric हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक डिसाइड करने के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक आर्च है, ठीक है, लेट अस हैव दैट आर्च। तो ये आर्च है, ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है, यहाँ पे भी हिंज है, यहाँ पे भी हिंज है, और यहाँ पे हमारा जो है ये है। तो एक तरीके की जो सिमेट्री होती है वो होती है ज्योमेट्रिक। ओके, एक जो सिमेट्री होती है वो ज्योमेट्रिक होती है। इसका मतलब इसका शेप सेम है, इसके दोनों साइड पे सेम सपोर्ट दिए हुए हैं, सब कुछ सेम है, तो ये आर्च क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ओके, दिस इज सिमेट्रिक बाय ज्योमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक बाय ज्योमेट्रिक। अभी अनसिमेट्रिक बाय ज्योमेट्रिक कैसा होगा, सी। ओके, एक सपोर्ट जो है सपोर्ट ए यहाँ पे है, और एक सपोर्ट जो है वो सपोर्ट बी जो है वो यहाँ पे। नाउ इफ यू विजुअली सी दिस ट्रस, विजुअली इटसेल्फ यू कैन से कि यहाँ पे इवन दो हमने हिंज का लोकेशन सेम रखा है, लोकेशन ऑफ ए एंड लोकेशन ऑफ बी इज डिफरेंट, ऊपर नीचे है। अगर इसको मैं कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाता हूँ तो इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट दिस सिमेट्रिक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिक। Okay, so this is symmetric by geometry, first one, and the second one is unsymmetric because of the geometry. और कौन सा unsymmetry हो सकता है, आपका जो symmetry है ये हो सकता है लोडिंग की वजह से। ओके, symmetry because of the loading. So symmetry because of loading कैसे आएगा, try to understand. ये जो सपोर्ट के कंडीशंस है, आइदर या तो सपोर्ट के कंडीशंस अलग अलग है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने इसको दे दिया हिंज और यहाँ पे बोल दिया कि भाई आप हो फिक्स्ड, ठीक है, तो दोनों साइड के ऊपर क्या हो गया, सपोर्ट कंडीशन अलग अलग हो गया, तो ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिक। और यही चीज अगर हम लोग बोलते हैं कि नहीं ये आपका ट्रस है और ये ट्रस के अंदर ज्योमेट्री के हिसाब से सब चीज बराबर है, यहाँ पे भी फिक्स है और यहाँ पे भी फिक्स है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक। ओके, सिमिलरली लोडिंग के अंदर सिर्फ सपोर्ट नहीं आता है, और भी कुछ आता है, जैसे कि आपके इसके ऊपर जो लोड एक्ट करेगा। ओके, अगर इसके ऊपर जो लोड एक्ट करने वाला है, जैसे सपोज ये हमारा 3 इंच आर्च ही बनाते हैं हम लोग, ठीक है, 3 इंच आर्च के अंदर जो लोडिंग हम लोग डाल रहे हैं इसके ऊपर, सपोज इसके ऊपर एक यूडीएल एक्ट कर रहे हैं, जो पूरा ए से लेके बी तक के इसके ऊपर W किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल एक्ट कर रहा है थ्रू आउट द लेंथ, ए से लेके बी तक। ओके, और ये सी पॉइंट पे इंटरनल हिंज है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे केस के अंदर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो लोडिंग है वो भी सेम है और इसका जो सपोर्ट रिएक्शन है वो भी सेम है। ओके, तो सपोर्ट रिएक्शन भी सिमेट्रिक है, सपोर्ट कंडीशंस भी सिमेट्रिक है और लोडिंग भी सिमेट्रिक है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बाय लोडिंग। ओके, और यहाँ पे सेम हम लोग उसी तरीके का एक पूरा सिमेट्रिक टाइप का एक आर्च बनाते हैं, और ये आर्च के अंदर जो लोडिंग है वो लोडिंग हम लोग बोलते हैं सिर्फ यही हिस्से में लोडिंग रहेगा, सिर्फ यही हिस्से के अंदर इसके ऊपर यूडीएल एक्ट कर, ओके, बाकी के हिस्से के अंदर यूडीएल एक्ट नहीं करेगा। तो अगर हम लोग इसको अभी ये देखें तो ये कैसा हो गया, आपका लोडिंग जो है वो थ्रू आउट द बीम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सिर्फ एक पोर्शन में है और एक पोर्शन के अंदर उसके ऊपर लोडिंग नहीं है। तो ये तरीके का अगर आपका रहेगा तो हम लोग इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिक। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड बिटवीन द सिमेट्री, कि सिमेट्री कैसी होती है। ज्योमेट्रिक सिमेट्री क्या होती है, मीन्स स्ट्रक्चर शुड बी सेम ऑन बोथ द साइड्स,
geometrically, and also in terms of support condition and loading your structure should be same. ठीक है, अगर लोडिंग भी सेम है पूरी थ्रू आउट, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक बराबर लोडिंग है, अगर बीच में से कट करेंगे तो दोनों ट्रस बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ लोडिंग, सपोर्ट एंड ज्योमेट्री, तो फिर हम लोग उसको बोलेंगे सिमेट्रिक आर्च. लेकिन अगर हम किसी आर्च को देखते हैं और उस आर्च को अगर हम लोग बीच में से काटेंगे और देखते हैं कि भाई ये इस साइड का पोर्शन और उस साइड के पोर्शन के अंदर देयर इज अ डिफरेंस, तो फिर वो हमारा अनसिमेट्रिक आर्च हो जाएगा. सो सिमेट्रिक आर्चेस और अनसिमेट्रिक आर्चेस दोनों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो आज के लेक्चर में और जो नेक्स्ट वीक का लेक्चर है, ये दोनों लेक्चर के हम लोग आर्चेस जो है उसको फिनिश करेंगे. तो 3 इंच आर्चेस के अंदर सपोर्टेड एट सेम लेवल एंड सपोर्टेड एट डिफरेंट लेवल. सपोर्टेड एट सेम लेवल का मतलब हो गया आपका सिमेट्रिक आर्चेस, एंड सपोर्टेड एट डिफरेंट लेवल मतलब ज्योमेट्रिकली different arches. Okay, please, if you want to write down or make any notes of this, please do that. If there is any doubt you have not understood in this particular topic or points that we have discussed now, please let me know.
Okay, everyone. Now, what we are trying to show you over here is that this is your arch, and we are trying to label some of the components of the arches, because in the problem, there will be the diagram might or might not be given to you, and the components will be given to you in terms of rise, in terms of the length, in terms of rise, in terms of length, in terms of coordinates, and all those things. Okay, so first we need to understand. Okay, first thing is that the curve which we are talking about is parabolic. Okay, we are talking about parabolic arches. Okay, so this curvature of this arch is parabolic in nature. If it is parabolic in nature, then it is governed by this equation, the equation of a parabolic curve. The equation of a parabolic curve is given by y is equals to 4hx in the bracket L, capital L minus x divided by capital L square. Now what is this capital L? L is the total length from first support to second support. पहले support से लेके दूसरे support तक का जो total length रहेगा, that length is given by capital L. Okay, so capital L is the length of the arch. Then there is another thing. अभी हम एक सिमेट्रिक आर्च की बात कर रहे हैं. जब अनसिमेट्रिक आर्च की बात करेंगे, then I will show you that ये राइज वगैरह किस तरीके से कैलकुलेट होता है. So over here, यहाँ पे हम लोग अभी आपके राइज की अगर बात करें तो जो सपोर्ट का लेवल है, जिस लेवल पे सपोर्ट है, उससे लेके जो टॉप पॉइंट होता है आपके आर्च का, जो सबसे टॉप पॉइंट होता है, उसका नाम होता है क्राउन. उसको क्या नाम दिया जाता है? क्राउन. इट इज कॉल्ड क्राउन ऑफ द आर्च. Okay, the topmost point is called the crown of the arch. So the distance between the base and the crown of the arch is the total rise of the arch. This total vertical distance is represented by small h. The total height of the arch or total rise of the arch is given by small h. Okay, so height of the arch, rise of the arch, these are one and the same thing. तो इसको हम लोग small h से represent करते हैं. ठीक है. Then what about y और x in this equation? इस इक्वेशन का एक जनरलाइज्ड फॉर्म है. ठीक है. अगर a पूरे लाइन के ऊपर a से c और c से लेके b तक, ये पूरे लाइन पे अगर मैं कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? x, y. x, y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? अगर मैं a को 0, 0 कंसिडर करता हूँ, अगर मैं a को ओरिजिन कंसिडर करता हूँ 0, 0, तो उसके हिसाब से कोई भी पॉइंट ले लूं मैं. ठीक है, ये डी पॉइंट ले लिया मैंने. ये डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y. x इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड y इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट a. तो वो पॉइंट के लिए ये इक्वेशन रहेगा y इज इक्वल टू 4hx l माइनस x अपॉन l स्क्वायर. यूजिंग दिस, अगर मेरे पास में y का वैल्यू है तो मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूँ, अगर x का वैल्यू है तो y का वैल्यू निकाल सकता हूँ. अगर मेरे पास में x और y दोनों का वैल्यू है, मेरे पास में पूरे कोऑर्डिनेट का वैल्यू है, तो मैं लेंथ रहेगा तो हाइट निकाल सकता हूँ, हाइट रहेगा तो लेंथ निकाल सकता हूँ. ओके, so this is the significance of this formula. Basically this formula is the equation for the curvature of your parabola. कोई भी पैराबोला होने दो, पैराबोला के लिए जो इक्वेशन लिखा जाता है, दैट इज 4y इज इक्वल्स टू 4hx l माइनस x अपॉन l स्क्वायर. ठीक है, ये वाला इक्वेशन यूज किया जाता है पैराबोला के लिए. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ आवर आर्च. अभी ये इसके अंदर एक चीज मैंने आपको शो नहीं किया, विच इज द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन. मैंने यहाँ पे VA और VB शो किया है, लेकिन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं शो किया. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जब आर्चेस में हम लोग बात करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस विल बी एक्टिंग इन इनवर्ड डायरेक्शन. इनवर्ड क्यों एक्ट करेंगे? अगर आप इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करें, तो A से C का पीस और B से C का पीस, ये जो दोनों पीस हैं, अगर इसके ऊपर यहाँ टॉप से अगर मैं लोड अप्लाई करता हूँ, तो क्या होगा? A विल ट्राई टू मूव इन आउटवर्ड डायरेक्शन, B विल ट्राई टू मूव इन आउटवर्ड डायरेक्शन. ये ऐसा कोलैप्स होगा, नीचे की तरफ दबेगा, C पॉइंट नीचे की तरफ आएगा, C में रोटेशन पैदा होगा, और C पॉइंट जब नीचे की तरफ आएगा तो A पॉइंट और B पॉइंट किस तरफ जाएंगे? बाहर की तरफ जाएंगे. तो अगर A पॉइंट और B पॉइंट बाहर की तरफ जाएंगे, तो रिएक्शन उनको क्या करेगा? अंदर की तरफ पुश करेगा. सो व्हाट विल बी द रिएक्शन फेल्ट बाय A एंड B? रिएक्शन इज द रिस्ट्रिक्शन. A और B जाना चाहते हैं बाहर की तरफ, लेकिन रिएक्शन क्या कर रहा है? उनको उनकी जगह पे मेंटेन कर रहा है, मींस उसको पुश कर रहा है अंदर की तरफ कि तुम तुम्हारी जगह पे ही रहो. सो HA और HB का डायरेक्शन इन case of our
parabolic arches is going to be in inward direction. Okay, so this is going to be your basic diagram. हर बार जब आर्च हम लोग बनाएंगे तो उस आर्च के अंदर इस तरीके का एक डायग्राम रहेगा जिसमें उसका लेंथ हमें रिप्रेजेंट करना है, उसका हाइट रिप्रेजेंट करना है, हिंजेस रिप्रेजेंट करने हैं, कहाँ पे रहेंगे वहां पे उसके सपोर्ट रिएक्शंस के डायरेक्शन ये रहेंगे और लोडिंग का डायरेक्शन मोस्ट प्रोबेबली डाउनवर्ड रहेगा. ठीक है, लोडिंग कौन से कौन की हो सकती है? जी बोलिए. वापस रिपीट कीजिए ना वो रिएक्शन इनवर्ड वाला. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ए से लेके सी और सी से लेके बी तक का जो पार्ट है, ठीक है, ये दो कर्व्ड पार्ट्स हैं और ये सी के ऊपर एक कैची वाला जो जॉइंट होता है ना, उस तरीके से इंटरनल हिंज वाले जॉइंट से ये जॉइंट है. अब इंटरनल हिंज के इस जॉइंट पे अगर आप ऊपर से लोड अप्लाई करेंगे तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा? एक प्रोबेबल डायरेक्शन ऑफ मोशन. एक्चुअली है तो सब कुछ स्टैटिक में ही, लेकिन हम एक अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ए और बी कहाँ मूव करने की कोशिश करेंगे. ए विल ट्राई टू मूव इन आउटवर्ड डायरेक्शन. ओके, ए विल ट्राई टू मूव इन लेफ्ट डायरेक्शन एंड बी विल ट्राई टू मूव इन द राइट डायरेक्शन. अगर A is trying to move in left direction and B is trying to move in right direction, A इस तरफ जाना चाह रहा है, B इस तरफ जाना चाह रहा है, तो उसका सपोर्ट क्या करेगा? उसको उस तरफ जाने से रोकेगा. अगर उस तरफ जाने से रोकेगा तो उसको वहां पे वो रिएक्शन डेवलप होगा. सो दैट्स व्हाई द रिएक्शन HA एंड HB which we are seeing right now are going to be in inward direction. ठीक है, because the points are trying to move in outward direction, the reaction, the direction of the reaction, the direction of the restriction or the direction of the force produced because of this restriction which we call reaction will be in the inward direction. Okay, और जितने लोडिंग इसके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग कैन बी अप्लाइड. आपका यहाँ पे पॉइंट लोड हो सकता है कि एक यूवीएल अप्लाई किया जाए. ठीक है, इसके ऊपर क्या हो सकता है कि इसके ऊपर यूडीएल अप्लाई किया जाए. ओके, यूडीएल, यूवीएल, पॉइंट लोड, ऐसे कोई भी तरीके के लोड हम लोग आर्चेस के ऊपर डाल सकते हैं. तो अलग अलग तरीके के लोडिंग के लिए हमें एनालाइज करते आना चाहिए. ओके, सो इफ यू वांट टू मेक दिस डायग्राम, प्लीज मेक द डायग्राम ऑफ A to B showing internal hinge, showing crown, writing the equation, please, all these things. Okay, so I hope every one of you have made the diagram. Now what is the funda behind this? अभी ये बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, आर्चेस के प्रॉब्लम रहेंगे. ठीक है, जैसे एक सैंपल प्रॉब्लम हम लोग अभी सॉल्व करेंगे. a 3-hinged parabolic arch of 20 meter span and 3 meter rise is carrying a point load of 100 kilonewton. उसके ऊपर एक 100 kilonewton का point load है at a section 1.5 meter from the left support से इतने मीटर के ऊपर वो रहेगा. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट. आपको वहां पे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का वैल्यू निकालना है कि कितना हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है, एंड बेंडिंग मोमेंट एट अ पॉइंट फ्रॉम राइट सपोर्ट से एक पॉइंट है जिसके ऊपर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है. तो इस तरीके से लोडिंग दी रहेगी और लोडिंग के हिसाब से एक पॉइंट बोला जाएगा कि पॉइंट के ऊपर कितना बेंडिंग मोमेंट है, ये बेंडिंग मोमेंट निकालिए और कितना इसके ऊपर थ्रस्ट आने वाला है. थ्रस्ट इज बेसिकली दिस. ओके, ये जो हमारा यहाँ HA और HB का वैल्यू है ना, ये आपका थ्रस्ट हो गया कि कितना इसके ऊपर थ्रस्ट आ रहा है. थ्रस्ट आपका जो
आर्च है, ये आर्च के ऊपर कितना थ्रस्ट आ रहा है, तो ये आपका ये वैल्यू हो गया। और दूसरा एक बात है कि आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो अगर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है किसी सेक्शन के ऊपर, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे हम लोग पहले ये पॉइंट पे आ गए डी पॉइंट के ऊपर। तो डी पॉइंट के ऊपर हमने सारी रिएक्शंस तो फाइंड आउट कर ली है, एच ए, वी ए, एच बी, वी बी, ये सारी रिएक्शंस हमने डिटरमाइन कर ली पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना के। वंस वी हैव द वैल्यूज ऑफ ऑल दिस अननोन रिएक्शंस, हम लोग डी पॉइंट के ऊपर मोमेंट ले सकते हैं। तो डी पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग मोमेंट लिखेंगे तो क्या मोमेंट आएगा, एच ए इंटू वाई जो डिस्टेंस है, एच बी इंटू वाई, ठीक है, वी ए इंटू एक्स, एंड देन वी बी इंटू एल माइनस एक्स। इस तरीके से डिस्टेंस लेके हम लोग यहाँ पे इसका मोमेंट लिख सकते हैं। ये तो एक्सटर्नल रिएक्शंस हो गए, प्लस समझो कि यहाँ पे अगर कोई लोड है, ठीक है, 100 किलो न्यूटन का समझो यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो ये लोड से इसका डिस्टेंस जो है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसका मोमेंट लिखेंगे। दैट मोमेंट एट दैट पर्टिकुलर सेक्शन इज कॉल्ड mx। वो मोमेंट के लिए हम लोग डी डेरिवेशन लेंगे और उसको इक्वेट करेंगे जीरो से। जो पूरा इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन को हम लोग डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर हम लोगों को मिलेगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो उस सेक्शन के ऊपर आ सकता है, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम्स हमको बेसिकली यहाँ पे सॉल्व करने हैं टू फाइंड आउट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द आर्चेस। जैसे आपने नॉर्मल जो फ्लैट बीम होती है आपकी, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल बीम होती है, उसके लिए आप लोगों ने सॉल्व किया है कि अगर उसके ऊपर लोड आता है तो उसका बेंडिंग मोमेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे। लेकिन ये जो कर्व्ड स्ट्रक्चर है, ये कर्व्ड स्ट्रक्चर के लिए आप कैसे बेंडिंग मोमेंट डिटरमाइन करोगे, ये हम लोग अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर देखेंगे। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंपोनेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रस। ओके, now I'm going to write down the question, also dictate the question for you, and please try to note down the question with me and try to solve the question with me. Okay, okay everyone, so the question is a 3-hinged parabolic arch of 20-meter span and 3-meter rise is carrying a point load of 100 kilonewton at a section 7.5 meter from left support. Find the value of horizontal thrust and bending moment at a point from right support. So this is your question and this is it. No diagram will be given to you. Okay, ये क्वेश्चन को पढ़ के आपको डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है और जो भी लोडिंग है लोडिंग को उसकी जगह पे अप्लाई करना है। कभी कभी डायग्राम भी गिवन रहेंगे, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार ऐसा वर्ड फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन अगर वर्ड फॉर्म में भी दिया है तो भी आपको डायग्राम बनाते आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले प्रीवियसली डायग्राम बताया कि लेंथ किसको बोलते हैं, हाइट किसको बोलते हैं, कौन सा लेफ्ट सपोर्ट है, कौन सा राइट सपोर्ट है। तो इस तरीके से आपको पढ़ के भी डायग्राम बनाना आना चाहिए। ओके, so I will give you 2 minutes to write this particular problem and also to make that particular arch and show all the components कि उसका लेंथ कितना है, हाइट कितना है, पॉइंट लोड कहाँ पे एक्ट करेगा। ओके, all those things. So you have 2 minutes for that. Okay. सर सपोर्ट कौन सा लेने का है?
Fixed support. नहीं, 3 हिंज है ना, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। 3 हिंज तो 3 हिंज में 2 तो हमारे सपोर्ट के हिंज हो जाते हैं, हिंज सपोर्ट्स, बराबर है, और एक हमारा जो होता है वो टॉप के अंदर हमारा इंटरनल हिंज होता है। ऐसे टोटल 3 हिंजेस होते हैं, बराबर। 3 हिंज का मैंने आपको इतनी बार डायग्राम बना के दिखाया। हर बार क्या होता है, 2 हिंजेस होंगे नीचे, ठीक है, जो कि हमारे हिंज सपोर्ट है, और एक आर्च के बीच में आपका इंटरनल हिंज होगा, ठीक है, एक इंटरनल हिंज और 2 हिंज सपोर्ट। Is it clear? Yes, sir. Okay. So please prepare the diagram for this. Sir, Yes. for a 3-inch arch, the internal hinge is necessarily at the crown, like in the location window, right? Yes. If there is no particular thing mentioned regarding the location of that internal hinge, then we are going to assume that it is at the crown. Okay, everyone, is it done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. See, for numerical subjects, you have to keep your calculators, your notebooks, your pen, everything ready. This is not a theoretical presentation subject that you are just going to come and listen to it and leave. Okay. I hope that everyone has their notebooks and pen, pencil, everything, scale and stationery with them. You have to make diagrams. You have to solve the problems with me. Then and then only you will be able to learn. Okay. If you are just going to see a presentation or something like that, then that will not do. Okay. तो अभी ये हमारा यहाँ पे सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने जो बनाया है, दिस इज बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ माय 3 हिंज आर्च। ओके, मैंने यहाँ पे नीचे के जो हिंज के सपोर्ट से इनको रिमूव कर दिया है और इनकी जगह पे मैंने VA, VB, HA, HB पुट किया है। HA और HB का डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो इट इज इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अभी हम लोग है ना मैकेनिक्स से और मॉस से बहुत ऊपर आ गए, अभी हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस के रेल्म में हैं। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस के रेल्म के अंदर हम लोग थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि भाई डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगा। जानबूझ के डायरेक्शन को गलत लेना और फिर बाद में आंसर माइनस आएगा और माइनस आने के बाद में उसको चेंज करना, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है हर बार, ठीक है। आप जब बिगिनर लेवल पे रहते हो, मैकेनिक्स या मॉस वगैरह स्टडी कर रहे हो, तो वो टाइम पे ठीक है, हम लोग को ये बात बोल सकते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि डायरेक्शन क्या होगा और वो डायरेक्शन के हिसाब से हम हर चीज़ को पॉजिटिव लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द बिहेवियर ऑफ द स्ट्रक्चर
बिहेवियर के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि भाई स्ट्रक्चर कैसे बिहेव करेगा, कौन सा पॉइंट किस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, तो उसका रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। दैट्स वाई हमने एच ए को पॉजिटिव एक्स में लिया है और एच बी को नेगेटिव एक्स में लिया है, ठीक है, क्योंकि वैसे तो है हमारे लिए अननोन, लेकिन अभी हमने इस तरीके से लिया। और एक फैक्टर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये एक सिमेट्रिक आर्च है और सिमेट्रिक आर्च के अंदर जो थ्रस्ट के वैल्यूज होते हैं, ये वाला थ्रस्ट और ये वाला थ्रस्ट, ये दोनों थ्रस्ट के वैल्यूज सेम होते हैं। अगर आप अभी ये समेशन एफ एक्स भी करेंगे ना, तो यू विल फाइंड आउट दैट बिकॉज ऑफ समेशन एफ एक्स एच ए इज इक्वल्स टू एच बी, बिकॉज बोथ आर प्लेस्ड एट द same, because there is no other horizontal force acting in the system. Okay, so HA is equals to HB, so you can put it like that also. Okay, now we can start applying conditions of equilibrium. सर Okay, say आपने बोले थे कि अपना ये पॉइंट ए लेफ्ट में मतलब मूव करेगा और पॉइंट बी राइट में मूव करेगा, है राइट ना? में मूव करेगा, हेलो मूव करेगा मतलब मूव करने की कोशिश करेगा, उसको एक्चुअली हाँ तो में पकड़ के तो रखा है। हाँ, तो सर पॉइंट बी राइट में मूव नहीं कर सकता मतलब पॉइंट भी राइट में नहीं मूव कर सकता है। अभी जो लोडिंग क्यों? कंडीशन है, आप जैसे ऊपर से देख रहे हैं, अगर आप आपके दो हाथ को इस तरीके से एक ट्राइंगल फॉर्मेशन के अंदर जोड़ते हैं, ठीक है, जैसे ये आर्च का है ना पोजीशन, ए से लेके सी और बी से लेके सी, इस तरीके से आप अपने दोनों हाथ को ऊपर की जो उंगली है ना, वो उंगली टच करिए, उंगली आपकी जहाँ पे टच हो रही है वो सी पॉइंट है और आपका जो दोनों कलाई है वो ए पॉइंट और बी पॉइंट है, बराबर है। अब अगर आप ऐसे सोचिए कि सी पॉइंट नीचे आना चाह रहा है, तो आपका ए और बी किस डायरेक्शन में मूव करेगा, आप खुद भी करके देख सकते हैं, अपने हाथों से कर सकते हैं, ठीक है। हाथ में आपके हाथों को आप टच करिए, जैसे आप नमस्ते करने के लिए जोड़ते हैं ना, उस तरीके से थोड़ा सा आपकी हथेली में डिस्टेंस रखिए, ट्राइंगल बनाइए और इस तरीके से आप रखिए। तो आपका सी पॉइंट वो है जहाँ पे आपके हाथ ऊपर से टच हो रहे हैं, आपका ए पॉइंट और बी पॉइंट आपकी कलाई है। आप समझिए कि लोड ऊपर से आ रहा है, जैसे 100 किलो न्यूटन का लोड ऊपर से नीचे एक्ट कर रहा है, तो आपके हाथ के ऊपर अगर ऊपर से लोड आएगा तो आपका हाथ कैसे मूव करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव आउटवर्ड। करेगा, बराबर है कि नहीं। तो अगर आपका हाथ ऐसा आउटवर्ड, आपकी कलाई आउटवर्ड मूव कर रही है, मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट का मूव कर रहे हैं, आउटवर्ड मूव कर रहे हैं। एक्चुअल में मूव कर नहीं सकते क्योंकि उसको सपोर्ट ने पकड़ के रखा है, लेकिन वो मूव तो आउटवर्ड करना चाहते हैं ना, तो उसको रिएक्शन कैसी मिलेगी, इनवर्ड मिलेगी, क्योंकि उसको रिएक्शन का काम है ना उसको रोकना। आर यू ओके गेटिंग? थैंक यू यस सर ओके, सो अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, पहली कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे, समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। बाय समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, एच ए माइनस एच बी इज इक्वल्स टू 0। सो एच ए इज इक्वल्स टू एच बी। ओके, वन सेकेंड, वन सेकेंड।
sorry for the delay. So summation fx is equals to 0 we are going to take. Summation fx is equals to 0 gives us HA is equals to HB. Okay, which is basically our thrust. This HA and HB is basically our thrust. Okay, thrust का मतलब क्या होता है? कोई भी तरीके को आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश करते हैं, कोई भी चीज को अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश करते हैं तो दैट इज योर thrust. Okay, so next equation that we can take is summation of moment at A is equals to 0. Okay, so if we take summation of moment at A is equals to 0, what will happen? जो एक हमारा फोर्स है HA वो पासिंग थ्रू A है. अगर हम HB की बात करें तो दिस इज ऑल्सो पासिंग थ्रू A. ओके, सो HA समीशन ऑफ मोमेंट एट A अगर हम लोग लेंगे तो इसके अंदर HA और HB दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे. Also VA is passing through A, तो VA will be eliminated. Only two forces will be there. This 100 kilonewton and VB is going to be there. So इससे हम लोग को डायरेक्टली VB का वैल्यू मिल जाएगा. ओके, सो टेकिंग समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल्स टू A. इसके अंदर हम लोग मोमेंट इक्वेशन लिखते हैं. ओके, सो मोमेंट इक्वेशन के अंदर बेसिकली HA इंटू 0 रहेगा, VA प्लस VA इंटू 0 रहेगा. ठीक है, एंड ऑल्सो प्लस HB इंटू 0 रहेगा. तो तीन तो हमारे जो है ये 0 ही आने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो. अगर आपको एक एक फोर्स को लाइन से कंसीडर करते जाना है तो आप सारे फोर्सेस को भी लिख सकते हो. आप चाहो तो 0 वालों को डायरेक्टली नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा. ओके, सो ये तीन फोर्सेस तो 0 हो गए. अब कौन सा फोर्स बचा है? 100 किलोन्यूटन का बचा है और एक VB बचा है. 100 किलोन्यूटन इज प्रोड्यूसिंग मोमेंट इन विच डायरेक्शन? 100 किलोन्यूटन का जो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट A इसके लाइन ऑफ एक्शन से 7.5 मीटर का डिस्टेंस है. ओके, सो प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? कौन सा डायरेक्शन है इसका? क्लॉकवाइज है ना? क्लॉकवाइज है. अगर A पॉइंट पे मैं उंगली रखता हूँ और 100 किलोन्यूटन को रोटेट करता हूँ तो मेरा जो डायरेक्शन बनता है रोटेशन का वो क्लॉकवाइज बनता है. ठीक है, सो 100 किलोन्यूटन इज ट्राइंग टू रोटेट द स्ट्रक्चर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो माइनस 100 इंटू 7.5 एंड VB का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन है. A के ऊपर रखूंगा और VB को रोटेट करूंगा तो VB इंटू 20 प्लस आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, सो प्लस 20 इंटू VB is equals to 0. Therefore, VB is equals to how much? 100 into 7.5 divided by 20. कितना आता है आंसर? 37.5. This is 155 into 7.5 is 37.5 kilonewton. Okay, and as the answer is coming positive, so that value that we have assumed is correct. So 37.5 is the value of VB. Now which equation we can use? Summation of Fy. Fy is equals to 0. So taking summation Fy is equals to 0, what are the values? VA plus VB minus 100 is equals to 0. VA is equals to 100 minus VB. कितना है VB? 37.5. So VA is equals to how much? 62.5. 62.5 kilonewton. Okay, so we have the value of VA with us. Now how will we proceed? Tell me, इसके आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? So splitting up into two components from the internal hinge. हाँ, Splitting up into So two internal components hinge. from internal hinge. ओके, हम लोग इंटरनल हिंज के पास से स्प्लिट कर सकते हैं, वहाँ से भी डिटरमाइन कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द probable solutions. What else do you have in your mind? y का वैल्यू Can we not निकालेंगे. take at C? सर y का वैल्यू निकालेंगे और दूसरे किसी पॉइंट पे मोमेंट फाइंड करेंगे. So moment at C can be, I think, calculated.
अभी एक चीज जो हम लोग कंसिडर Parabolic करेंगे equation. वो क्या, सी के ऊपर है ना, यहाँ पे हमारा इंटरनल हिंज है। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेंडिंग मोमेंट एट सी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट एट सी का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। हम लोग बेंडिंग मोमेंट एट सी का इक्वेशन लिखेंगे और फिर हम लोग उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, सो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। आपने 3 इक्वेशन यूज कर लिए। अब इंटरनल हिंज के हिसाब से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अभी इंटरनल हिंज के हिसाब से हम लोग कैसे इक्वेशन लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट डाउन बेंडिंग मोमेंट एट सी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग समेशन ऑफ मोमेंट एट सी। आप बात को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, हम लोग क्या है, बेंडिंग मोमेंट एट सी नहीं निकाल रहे हैं, सॉरी, हम लोग समेशन ऑफ मोमेंट एट सी नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग बेंडिंग मोमेंट एट सी निकाल रहे हैं। सी के ऊपर का बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं। अगर सी के ऊपर का बेंडिंग मोमेंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ना, तो जैसे बीम के अंदर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो बीम के अंदर अगर हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है किसी भी सेक्शन के ऊपर, तो वो सेक्शन का आइदर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं या राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। आपको समझ में आ रहा है? अगर हम लोग यहाँ पे किसी का बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, किसी पॉइंट पे अगर हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, तो वो पॉइंट के ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, वो पॉइंट को हम लोग वो सेक्शन को कंसीडर करते हैं कि ये सेक्शन, तो सेक्शन के आइदर राइट हैंड साइड का या लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी फोर्सेस हो, जो कुछ भी हो, वो फोर्सेस के हिसाब से हम लोग उसका बेंडिंग मोमेंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास में, क्योंकि सी एक इंटरनल हिंज है, तो सी का हमें पता है कि बेंडिंग मोमेंट जो है वो 0 आने वाला है। ठीक है, तो वो वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी है। वी आर नॉट डूइंग समेशन ऑफ मोमेंट। देखो, समेशन ऑफ मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो किसी भी पॉइंट को ले लूं, चाहे वो सी पॉइंट हो या ए पॉइंट से सी पॉइंट के बीच का कोई भी पॉइंट ले लूं, बिकॉज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो समेशन ऑफ मोमेंट तो 0 ही आएगा। आप समझ रहे हो कि नहीं? आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम डूइंग? ये जो समेशन ऑफ मोमेंट एट ए मैंने लिया, इसको मैं समेशन ऑफ मोमेंट एट बी ले लूं, कुछ भी ले लूं, किसी भी पॉइंट पे ले लूं, तो वो तो मेरा 0 ही आने वाला है, क्योंकि वो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर है। मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ बेंडिंग मोमेंट एट सी की। आर यू गेटिंग इट? मतलब सी के ऊपर बेंडिंग मोमेंट मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? अगर एक हॉरिजॉन्टल बीम होता, ठीक है, अगर एक हॉरिजॉन्टल बीम होता यहाँ से लेके यहाँ तक का सपोर्ट का, ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोड अप्लाइड है और आपको ये पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो आप क्या करेंगे? या तो आइदर यहाँ से लेके यहाँ तक के ये दो फोर्सेस का बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे अबाउट दिस पॉइंट, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, ये आपका ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 है, बराबर है। तो व्हेन यू ट्राई टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट, यू सी आइदर ऑन द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, so now what I'm asking you to write down is, I want you to write down the equation for bending moment at C. तो बेंडिंग मोमेंट एट सी के लिए आइदर राइट हैंड साइड के लिए लिखिए या लेफ्ट हैंड साइड के लिए, आप कोई भी लीजिए। अगर आप राइट हैंड साइड लेके भी लिखेंगे इक्वेशन, तो एच बी और एच ए दोनों एक ही है। अगर आपने एच बी भी निकाल लिया तो भी एच ए मिल जाएगा। अगर आप ये साइड लेके सॉल्व करते हैं, एच ए निकालते हैं, तो भी आपके लिए एच बी मिल जाएगा। ओके, सो प्लीज राइट डाउन मोमेंट इक्वेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जब सॉल्व करते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए, हम लोग हमेशा वो वाला साइड चूज करते हैं जिस साइड के ऊपर कम नंबर ऑफ फोर्सेस रहेंगे। ठीक है, तो कम नंबर ऑफ फोर्सेस हमें क्या करते हैं कि मोमेंट इक्वेशन में मेरे जो ये, जैसे यहाँ पे 100 इंटू 7.5 लिखा, 20 इंटू वीबी लिखा, तो एक्चुअली तो ये वाले फोर्सेस भी थे वहां पे, लेकिन वो 0 थे, लेकिन ये मेरे मोमेंट इक्वेशन में 2 वैल्यूज आई। अब यहाँ पे अगर मुझे चूज करना है कि मैं राइट हैंड साइड वाला लूँ या लेफ्ट हैंड साइड वाला लूँ, तो कैसे डिसाइड करेंगे? राइट हैंड साइड के ऊपर 100 किलो न्यूटन एच ए और वी ए 3 फोर्सेस हैं, आपको 3 मोमेंट इक्वेशन लिखने पड़ेंगे, बराबर है। 3 कंपोनेंट आएंगे मोमेंट इक्वेशन के। लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड चूज करता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर वीबी और एच बी सिर्फ 2 ही फोर्सेस हैं। ठीक है, मोमेंट तो राइट हैंड साइड से भी उतना ही आएगा, लेफ्ट हैंड साइड से भी उतना ही आएगा, हॉगिंग और सैगिंग। आपको पता है ना, एक सेक्शन के अराउंड जो मोमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो या तो मोमेंट ऐसा रहेगा, ठीक है, या तो मोमेंट ऐसा रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। ये वाला नेगेटिव होता है, ये वाला पॉजिटिव होता है। मालूम है ये सब आपको? डू यू नो दिस?
You should know this because in structural analysis we are assuming that कि आपको bending moment वगैरह क्या होता है ये सब चीज पता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ये बात बोलेंगे कि दाबली सर ने हमको बताया ही नहीं कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है और हॉगिंग क्या होता है और सैगिंग क्या होता है, सो इट इज वेरी हार्ड टू बिलीव, ओके। So as per my knowledge, I think that you know that what is hogging bending moment and sagging bending moment. ये इसके हिसाब से आप डायरेक्शंस भी समझ सकते हो कि क्या पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगा और क्या नेगेटिव डायरेक्शन रहेगा, ओके। सो लेट अस टेक और राइट डाउन इक्वेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी, ओके। सो मोमेंट एट सी जो बेंडिंग मोमेंट है, देखो मैं समेशन साइन यूज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, समेशन साइन यूज नहीं कर रहा हूँ। मोमेंट एट सी इज 0 क्योंकि वो एक इंटरनल हिंज है, हिंज के ऊपर मोमेंट आ ही नहीं सकता है, मोमेंट क्या होता है 0 हो जाता है हिंज के ऊपर, ठीक है। सो हिंज के ऊपर तो मोमेंट हमारा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मोमेंट एट सी इज इक्वल टू 0। तो मोमेंट एट सी बिकॉज कि हम लोग इसके आप लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर तो हाथ रख दीजिए, आपको राइट हैंड साइड ही विजिबल होना चाहिए, ठीक है। एच बी और वी बी के लिए हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, ओके। सो हाउ विल बी द इक्वेशन, व्हाट विल बी द साइन कन्वेंशन, प्लीज राइट द इक्वेशन। Okay, so what we are doing right now over here is that you can see VB. VB is trying to produce which kind of moment? VB का जो डायरेक्शन है मोमेंट का वो इस साइड पे, अगर हम लोग देखें इस साइड पे, तो अगर आप देखें तो नीचे सैगिंग वाला पोजीशन आता है, ठीक है। सैगिंग वाला जो डायरेक्शन है ना बेंडिंग का, सैगिंग वाला डायरेक्शन मींस पॉइंट सी के ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा वो सी को नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करेगा, बी को ऊपर की तरफ ले जाएगा, ठीक है। सी को नीचे की तरफ दबाएगा और बी को ऊपर की तरफ ले जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी पॉइंट डिफ्लेक्शन में नीचे की तरफ जा रहा है, सैगिंग मोमेंट हो रहा है, ठीक है, या उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है इस साइड के ऊपर, आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है तो लाइन के जो मैंने नीचे लाइन बनाया ना हॉगिंग और सैगिंग का, उसमें आप उसका देख सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से हॉगिंग और सैगिंग का कौन सा पॉजिटिव रहेगा और कौन सा नेगेटिव रहेगा। तो अगर सैगिंग के हिसाब से देखा जाए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नेगेटिव। तो सी पॉइंट पे रख के अगर वीबी को मैं देखूं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन विच इज सैगिंग। तो सैगिंग के हिसाब से यहाँ पे आपका क्या आएगा, VB इंटू 10 इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। सिमिलरली HB का जो डिस्टेंस है 10 क्यों लिया, 20 टोटल डिस्टेंस है तो सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 10 मीटर होगा, दैट्स वाई VB इंटू 10, ठीक है। जो आपका टोटल डिस्टेंस है वो 20 है तो उसका हाफ डिस्टेंस कितना होगा 10 मीटर एंड 10 मीटर। यहाँ सेंटर से अगर हम लोग देखेंगे तो डिस्टेंस जो रहेगा वो कितना रहेगा 10 मीटर एंड 10 मीटर। तो VB का डिस्टेंस C से कितना है 10 मीटर है और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। सैगिंग बेंडिंग मोमेंट के लिए हमारा यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या है, पॉजिटिव है, तो प्लस VB इंटू 10 एंड माइनस HB का अगर हम लोग डायरेक्शन देखेंगे इस डायरेक्शन के अंदर तो इट इज क्रिएटिंग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ओके, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। So anti-clockwise, HB is creating clockwise moment. So HB is creating clockwise moment, तो clockwise के लिए हमारा क्या रहेगा डायरेक्शन माइनस। तो यहाँ पे प्लस VB इंटू 10 माइनस HB इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, VB का वैल्यू कितना है 37.5 इंटू 10 माइनस HB इंटू 3, HB इंटू 3 will keep it as it is equals to 0. Therefore HB is equals to how much? 125 kilonewton. 125 kilonewton. Everybody is getting the same answer, 125 kilonewton. Yes. सर नेगेटिव आना चाहिए ना -125 क्योंकि हमने नेगेटिव कंसीडर किया। तो हमने नेगेटिव कंसीडर किया, हमारा आंसर राइट आया ना, मतलब मैंने जो डायरेक्शन अज्यूम किया सर नहीं माइनस, देखो प्लीज लिसन वेरी केयरफुली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ।
ये इक्वेशन हमने क्या लिखा है, ये मोमेंट इक्वेशन है, बराबर है। अगर ये मोमेंट इक्वेशन है तो यहाँ पे डायरेक्शन मोमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से होगा। ये जो माइनस आ रहा है यहाँ पे, माइनस और प्लस जो हमने यहाँ पे लिया bb इंटू 10 और hb इंटू 10, ये मोमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से, बराबर है। अब इसका जो आंसर आया, ये हाँ क्या सर। आंसर पॉजिटिव आया, बराबर। hb इज 125 किलोन्यूटन पॉजिटिव। अब इस बात पे ध्यान दीजिए कि मैंने जब ये इक्वेशन में hb इंटू 3 लिखा माइनस, तो मैंने hb का डायरेक्शन क्या अज्यूम किया था, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, बराबर है कि नहीं। मैंने डायरेक्शन को इनवर्ड अज्यूम किया था हाँ ना, सर। तो मैंने जो डायरेक्शन अज्यूम किया उसी के हिसाब से मेरा यहाँ पे मैग्नीट्यूड आया है। आप समझ रहे हो। अगर मैंने डायरेक्शन आउटवर्ड अज्यूम करता, देखो अभी हम हाँ लोग सर। इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। मैं ऐसा मानता हूँ कि चलो मेरे को पता नहीं है ना, तो मैंने आउटवर्ड अज्यूम किया, ठीक है, प्लस रखा। अगर प्लस रखूंगा तो यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ये प्लस हो जाएगा, बराबर है। अगर ये प्लस हो जाएगा और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर माइनस आएगा। आर यू गेटिंग इट। आंसर माइनस आता कि नहीं। अगर आंसर माइनस आता तो मैंने डायरेक्शन पहले ये अज्यूम किया था, अब ये डायरेक्शन को छोड़ के आई हैड टू सिलेक्ट दिस डायरेक्शन, बराबर है कि नहीं। यस सर। Yes, sir. आपका डाउट क्लियर हो रहा है मैं जो बोल रहा हूँ उससे। हाँ सर हुआ। ओके ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि डायरेक्शन प्लस माइनस का खेल कैसे खेला जाता है। ओके सो अभी फिलहाल में तो मेरा आंसर पॉजिटिव आया था, ठीक है। और जो मेरा डायरेक्शन था वो मैंने इनवर्ड अज्यूम किया था, बराबर है। तो यहाँ पे मेरा ये माइनस रहेगा, माइनस रहेगा, आंसर पॉजिटिव आता है। जो डायरेक्शन मैंने अज्यूम किया वो करेक्ट है। तो एच बी का वैल्यू मिल गया, इसका मतलब एच ए का भी मैग्नीट्यूड मिल गया, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ एच ए एंड एच बी इज सेम, बराबर है कि नहीं। therefore HA is equals to 125 किलोन्यूटन, ठीक है। सो मेरे पास में सारे एक्सटर्नल रिएक्शंस के वैल्यूज जो है वो अब आ गए हैं। इज इट क्लियर। Yes, sir. ठीक है, इसका वैल्यू आ गया मेरे पास में 125 किलोन्यूटन, इसका भी वैल्यू आ गया, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन है वो ये है, इसका जो डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है। एच बी का दिस इज 125 किलोमीटर, एच एच बी सब वैल्यू आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या डिटरमाइन करना है, मीन्स मैंने प्रॉब्लम का एक चीज डिटरमाइन कर लिया। प्रॉब्लम में मुझे बोला गया था हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डिटरमाइन करने के लिए, मैंने हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को डिटरमाइन कर लिया। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। यस सर। ओके, एक चीज समझने वाली है, आपके हर सेक्शन के ऊपर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। आप किसी भी पॉइंट को कट करोगे ना, उस पॉइंट के ऊपर उसका जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का रिएक्शन का जो वैल्यू है वो वैल्यू जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू बेंडिंग मोमेंट, नाउ थिंक अबाउट इट कि अब मुझे बेंडिंग मोमेंट डिटरमाइन करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मैं कैसे डिटरमाइन करूंगा बताइए। सोचिए थोड़ा सा, कोई डायग्राम बनाइए, कुछ इक्वेशंस लिखिए, और आपका जो इनिशियल डायग्राम है ये डायग्राम को यहाँ से फिर से जरा नीचे बनाइए, जिसके अंदर आप सारे नॉन वाले जो रिएक्शंस हैं वो सबके वैल्यूज बराबर से लिखिए, ठीक है। ताकि ये जो मेरे इसमें जो थोड़ा सा खिचड़ी बन रहा है ना, इस तरीके से खिचड़ी नहीं बनेगा।
Okay, so now we have already determined the value of our thrust का वैल्यू हम लोग डिटरमाइन कर चुके हैं, विच इज HA and HB. अब हमें क्या डिटरमाइन करना है, जो बोला गया है कि फ्रॉम द राइट सपोर्ट, राइट साइड का सपोर्ट कौन सा है, पॉइंट बी. ठीक है, सपोर्ट बी. सपोर्ट बी से हमें एक ऐसा सेक्शन निकालना है कि जिस सेक्शन के ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा. हमें सपोर्ट बी से एक ऐसा सेक्शन ढूंढना है जिस सेक्शन के ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा. अब ये सेक्शन कोई डिफाइंड सेक्शन नहीं है कि भाई इस जगह पे आप ढूंढिए. ये सेक्शन अगर डिफाइंड होता तो फिर हमारे लिए बहुत ही आसान था. ये आंसर एकदम फट से 2 मिनट में हमारा आंसर निकल जाता. अगर कोई बोलता ना कि भाई आप 2 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर फाइंड आउट कर लीजिए, तो 2 मीटर के डिस्टेंस पे मैं अभी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करके आपको दे सकता हूँ. लेकिन हमें ये नहीं बोला गया है. हमें प्रॉब्लम में क्या बोला गया है कि एक सेक्शन है जो कि राइट हैंड साइड से आपको लेना है, और वो सेक्शन होना चाहिए. मतलब उस सेक्शन का एक प्रॉपर्टी क्या बोला है कि उसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होना चाहिए. उसमें क्या होना चाहिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होना चाहिए. तो अब ये चीज हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो ये आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए. हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने आधा आर्च यहाँ पे बनाया है, सी से लेके बी तक का आर्च बनाया है. बी के रिएक्शन जो है, सपोर्ट रिएक्शंस, वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं. ठीक है, फिर मैंने एक यहाँ पे पॉइंट लिया. ये पॉइंट समझो डी पॉइंट है. डी पॉइंट पे मैंने सेक्शन XX कट किया, एक सेक्शन कट किया. ठीक है, इस आर्च का एक सेक्शन यहाँ पे कट किया. ये जो सेक्शन लिया है मैंने एट पॉइंट डी, इसका अभी मुझे पता नहीं है कि कहाँ पे, तो मैं इसको कुछ पैरामीटर को नाम दे दूंगा. जैसे कि इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बी से, वो x दे देंगे, और इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है बी से, उसको मैं y दे देता हूँ. ठीक है, जो कि हमारे इक्वेशन का भी आधार है, y = 4hxl - x/l². ये इक्वेशन को आप राइट हैंड साइड से भी पकड़ सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड से भी पकड़ सकते हो. दोनों चीज में कोई रॉन्ग नहीं है. ठीक है, आप इसको राइट हैंड साइड से भी यूज कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड से भी यूज कर सकते हो, क्योंकि पैराबोला एक सिमेट्रिक फिगर होता है. ठीक है, तो पैराबोला क्योंकि सिमेट्रिक होता है, दोनों साइड से फॉर्मूला सिमिलरली अप्लाई होता है, दोनों साइड से कर्वेचर का जो इक्वेशन है वो सेम रहता है. ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग दिस राइट नाउ, अब मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पॉइंट जो डी पॉइंट है, जहाँ पे मैंने सेक्शन XX मारा है, वहां पे मैं मोमेंट x निकालता हूँ. ठीक है, कि इस सेक्शन के ऊपर कितना मोमेंट होगा. इस सेक्शन के ऊपर का अगर मोमेंट मुझे डिटरमाइन करना है, तो आइदर या तो मैं सेक्शन के राइट हैंड साइड का लूंगा या लेफ्ट हैंड साइड का लूंगा. अभी करंट सिनेरियो में मेरे पास में तो राइट हैंड साइड का डेटा अवेलेबल है, तो मैं राइट हैंड साइड का डेटा लूंगा. लेफ्ट हैंड साइड का भी लेके आप सॉल्व कर सकते हो. मींस इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको आधा ही ट्रस बनाना है, आप चाहो तो पूरा भी ट्रस बना सकते हो. ठीक है, ये आपका पॉइंट A है, ये C है. ठीक है, यहाँ पे इंटरनल हिंज है, यहाँ पे आपका 100 किलोन्यूटन का फोर्स है, यहाँ पे आपका HA है, VA है. ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं सेक्शन के राइट हैंड साइड का लेना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि वहां पे मेरे पास में 2 ही फोर्सेस हैं. ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा x का वैल्यू और y का वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द राइट हैंड साइड रहे, इसलिए मैंने उसको वहां से चूज किया. आप चाहो तो A पॉइंट वाला भी इक्वेशन लिख सकते हो, आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा. ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो राइट हैंड साइड के लिए, सो 125 into y, 125 into y, एंड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज के लिए क्या आएगा, माइनस 37.5 into x. 37.5 वर्टिकल वाला फोर्स है, इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम दैट इक्वेशन, दैट इज, ये कितना है आपका यहाँ पे x डिस्टेंस, क्योंकि अभी हमको वैल्यू पता नहीं है ना कि कितने डिस्टेंस के ऊपर होने वाला है. सो दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग दैट डिस्टेंस इज x. ये x यूज करके हम लोग यहाँ पे डालते हैं. तो 37.5 into x is creating anti-clockwise movement about that particular cross section. तो वो मोमेंट यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा. एंड 125 into y अगर हम लोग देखेंगे तो इट इज प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज मोमेंट, सो क्लॉकवाइज इज गोइंग टू बी नेगेटिव. ये हमारे पास में इक्वेशन आया. लेकिन अभी यहाँ पे x का मोमेंट तो मुझे पता है नहीं, वो तो पहला अननोन है. दूसरी बात है कि मुझे x का वैल्यू भी नहीं पता और y का वैल्यू भी नहीं पता. सो मेनी अननोन्स आर देयर. तो यहाँ पे हम लोग कुछ हमारे जो इक्वेशंस है उसका हेल्प लेंगे. जैसे ये y का वैल्यू है, तो y इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है, अगर मैं y को इन टर्म्स ऑफ x डाल देता हूँ तो मेरा एक अननोन कम हो जाएगा यहाँ पे. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दैट. सो 37.5 into x, ये आपका एक पार्ट हो गया इक्वेशन का, माइनस 125 into 4h into x डिवाइडेड बाय l² l minus x. ये आपका दूसरा पार्ट हो गया. अभी पूरा इक्वेशन x के फॉर्म में आ गया. ठीक है, mx. अभी मुझे यहाँ पे लिखना है 37.5
इंटू एक्स माइनस 125, ये कितना है 4 इंटू हाइट कितना है हमारा जो पैराबोला है उसका हाइट है 3 बराबर, राइज कितना है हमारा 3 है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर कितना है 20 स्क्वायर, 20 माइनस एक्स। ठीक है, नाउ लेट अस simplify the equation. So 37.5x minus 125, 4 into this is 12x divided by 400 into 20 minus x, that is equals to 37.5x minus, we can take 12 into 20, so that is going to be 240x minus 12x square divided by 400. ओके, इसको हम लोग फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। mx इज इक्वल्स टू 37.5x माइनस 125 को हम लोग अंदर लेंगे, सो 125 इंटू 240 इज हाउ मच, 125 into 240 divided by 400 is 75. Yes. So 37.5x minus 75, 75x, see 125 into 240 divided by 400 किया हमने, then 125 into 12 divided by 400, 125 into 12 divided by 400, 3.75. 3.75. So ये माइनस 125 है, ये अंदर जाएगा, माइनस 125 इंटू माइनस 12 प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3.75 एक्स स्क्वायर, ठीक है, 37.5x एंड 75x, इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आंसर आता है हमारे हाथ में, mx इज इक्वल्स टू 3.75x स्क्वायर माइनस 37.5x, बराबर है। ये हमारा मोमेंट एट x जो क्रॉस सेक्शन है इसका इक्वेशन हो गया। ये तो एक मोमेंट का इक्वेशन हो गया, इस पैराबोला के लिए, इस लोडिंग कंडीशन के लिए ये एक मोमेंट का इक्वेशन हो गया। इसमें आप x का वैल्यू डालते जाइए, आपको मोमेंट का वैल्यू मिलते रहेगा, बराबर है कि नहीं। ये एक इक्वेशन बन गया हमारे लिए मोमेंट। किसी भी सेक्शन के ऊपर अगर मोमेंट निकालना है तो आप वो सेक्शन का खाली वैल्यू डाल दो x का। आप इसमें 1 मीटर डालोगे तो आपको b से 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर, b से 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर कितना मोमेंट है वो मोमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मोमेंट मिलते रहेंगे, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या है वो डिटरमाइन करना है मुझे, ठीक है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस जगह पे आएगा वो मुझे निकालना पड़ेगा, तब जाके वो काम होगा, बराबर है कि नहीं। तो इस चीज को कैसे करेंगे हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था कि डेरिवेटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इक्वेटेड टू 0, दैट मीन्स dmx बाय dx, इसका डेरिवेटिव इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए। ये आपका मैक्सिमा और मिनिमा का क्राइटेरिया रहता है। आपका मैक्सिमा और मिनिमा डिटरमाइन करना हो ना, तो हम लोग इंटीग्रेट और डेरिवेट करके डिटरमाइन करते हैं कि इसका मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा। तो इस तरीके से डेरिवेशन करके हम लोग डिसाइड करेंगे। सो इसको इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। तो ये dmx क्या होगा, d बाई dx ऑफ 3.75 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 37.5x, बराबर, इक्वल टू 0। ये हम लोग करेंगे। अभी यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे इक्वेट करने वाले d बाई dx का वैल्यू, तो इसको डेरिवेशन को हम लोग अंदर डालते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ये पार्ट आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो डेरिवेशन को अगर हम लोग अंदर लेके जाएंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होता है 2x, तो 3.75 का डबल क्या होगा 7.5 टाइम्स ऑफ x माइनस इसका डेरिवेशन क्या होगा 37.5x का 37.5 इज इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको x का वैल्यू मिलेगा। कैन यू गिव मी द वैल्यू ऑफ x? What will be the value of x? 37.5 will go on that side
एंड डिवाइडेड बाय 7.5, तो मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए 5, बराबर है। Yes, sir. यस सर। तो अभी हमें जो ये x का वैल्यू मिला है ये किस लिए मिला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन डाला टू डिटरमाइन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। इसका मतलब ये जो x का वैल्यू मैंने डिटरमाइन किया है इस पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होने वाला है, ठीक है, इसलिए मुझे x का वैल्यू ये मिला है। अब ये x का वैल्यू जहाँ पे मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आने वाला है इसको मैं अब इक्वेशन में डालूंगा mx के, ठीक है। mx का इक्वेशन तो है ही मेरे पास में, mx का क्या इक्वेशन है 3.75 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 37.5 टाइम्स ऑफ x। इसके अंदर आपको ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है तो आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा, ठीक है। पहले तो हमने लोकेशन निकाला किस लोकेशन पे मिलेगा और अब उस लोकेशन के अंदर हम x का वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो मोमेंट एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू 3.75 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर माइनस 37.5 इंटू 5। तो कितना आता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका? Minus 93.75. माइनस 93.75, ओके, किलो न्यूटन मीटर। माइनस आ रहा है इसका मतलब क्या है? माइनस आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ये जो बेंडिंग मोमेंट है ये हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। ये जो बेंडिंग मोमेंट है कौन सा बेंडिंग मोमेंट है? हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, जिसके अंदर डिफ्लेक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। प्लीज राइट डाउन ऑल द कैलकुलेशंस and complete the calculations for this. Okay, everyone, have you understood this? Is it clear? यस सर। यस सर। आपको Yes, sir. समझ में एक 3 हिंज आर्च क्या होता है, ठीक है। एक आर्च होता है ऐसा, ठीक है, कर्व शेप के। ये जो दो कंपोनेंट है ये टॉप के अंदर एक हिंज के थ्रू ज्वाइन किए गए हैं, ठीक है। ये हिंज हम अज्यूम करते हैं, ठीक है, एक्चुअल में ऐसे 3 हिंज आर्चेस मिलेंगे नहीं आपको, रियलिटी के अंदर फिक्स्ड आर्चेस ही होते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें आपको आर्च इंट्रोड्यूस करना है, आर्च है ना एक कर्व्ड स्ट्रक्चर रहता है, इसके हर एक सेक्शन के ऊपर जो हम लोग फोर्सेस निकालेंगे ना तो एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट रहेगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा। जैसे आपके वो स्ट्रेट वाले मेंबर्स रहते हैं तो उसमें कैसा कंप्रेशन और टेंशन होता है ट्रसेस के अंदर, वैसा आर्चेस के अंदर कंप्रेशन और टेंशन नहीं होता है, इसके अंदर बेंडिंग मोमेंट आता है और इसके अंदर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शंस और हर सेक्शन के ऊपर मोमेंट आता है, हर सेक्शन के ऊपर मोमेंट आता है, ठीक है। सो दिस इज अ समवॉट डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देन योर ट्रसेस, ओके। इसका देख दिखाव ऐसे ही रहता है कि दो मेंबर को ऐसा हिंज से जॉइंट कर दिया और नीचे ऐसा हिंज दे दिया तो ऐसा ट्रस जैसा होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कर्व्ड नेचर उसके अंदर जो लोड ट्रांसफर होता है दैट इज नॉट ट्रांसफरिंग इन कंप्रेशन एंड टेंशन, इट इज ट्रांसफरिंग इन द फॉर्म ऑफ दिस थ्रस्ट एंड बेंडिंग मोमेंट, ओके। इसलिए हर सेक्शन पे आप जब कैलकुलेट करोगे तो हर सेक्शन पे आपको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट मिलेगा, वर्टिकल थ्रस्ट मिलेगा और आपको बेंडिंग मोमेंट मिलेगा हर सेक्शन के ऊपर। आर यू गेटिंग इट? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये तरीका है, अभी मैंने जो आपको बताया ये सिर्फ एक मेथडोलॉजी है, ये सिर्फ इसका एक लॉजिक है जिस लॉजिक से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और बेंडिंग मोमेंट वगैरह कैलकुलेट करते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। अभी ये हमने जो कैलकुलेट किया था ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया, पर ये प्रॉब्लम में पूछने वाला इस तरीके से भी पूछ सकता है आपको प्रॉब्लम के अंदर
कि भाई ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है इसके अंदर मुझे राइट हैंड साइड से 3 मीटर पे कितना बेंडिंग मोमेंट होगा बता दीजिए। आर यू गेटिंग इट? तो अगर आपको डायरेक्टली एक्स का वैल्यू उसने दे दिया है कि भाई 3 मीटर के ऊपर आपको डिटरमाइन करना है कि कितना बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो फिर आपको डेरिवेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपके पास में mx वाला इक्वेशन तो है ही, पूरा मोमेंट वाला इक्वेशन। आप उस इक्वेशन को यूज करिए और इक्वेशन को यूज करके उसके अंदर डायरेक्टली आपको 3 का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना है इन प्लेस ऑफ एक्स। आप जैसे 3 का वैल्यू इन प्लेस ऑफ एक्स सब्सटीट्यूट करेंगे आपको उस लोकेशन के ऊपर का बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। आर यू गेटिंग इट? यस ओके। सर। अगर आप चाहे तो आप एज एन होमवर्क, एज अ प्रैक्टिस, एक तरीके का फन एक्टिविटी समझ सकते हैं। ये पूरे डायग्राम के लिए, ये जो पूरा आपने जो ट्रस बनाया है ना 20 मीटर का ट्रस, ये 20 मीटर के ट्रस के लिए बी पॉइंट से आपके पास में mx का इक्वेशन है। हर 1 मीटर के ऊपर बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करिए। वो इक्वेशन के अंदर x का जो वैल्यू है वो वैल्यू को 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर इस तरीके से डालिए और पेज के ऊपर है ना एक बड़ा सा ट्रस बनाइए और वो ट्रस के अंदर हर मीटर पे क्या वैल्यू आया ना वो वैल्यू को प्लॉट करिए कि बेंडिंग मोमेंट प्लस जा रहा है, माइनस जा रहा है, कैसा जा रहा है। तो आपको पूरे इसका जो 20 पॉइंट मिलेंगे ना, हर पॉइंट के ऊपर आप डिटरमाइन करेंगे तो 20 पॉइंट के ऊपर आपको अलग अलग वैल्यू मिलेंगे। 20 पॉइंट के लिए जब आप इक्वेशन सारे वैल्यूज लिख लेंगे फिर उसको आप कर्व्ड लाइन से ज्वाइन करिए तो आपको पूरा जो आपका आर्च है वो आर्च का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिल जाएगा। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? यस यस सर। सर। ये क्वेश्चन में Yes, पूछा sir. नहीं, जहाँ पे हमने सॉल्यूशन खत्म किया ना वहाँ पे सॉल्यूशन हो गया खत्म, ठीक है। लेकिन अगर आपको देखना है कि इस ट्रस का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या, ये आर्च का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, तो आपको क्या करना है, हर मीटर पे या हर हाफ मीटर पे आपको जितना एक्यूरेट कर्व चाहिए आप वहाँ पे उसके वैल्यूज को डिटरमाइन करिए खाली इस इक्वेशन के अंदर 1 2 3 4 5 6 लेके 20 तक डाल के। तो आपको ए पॉइंट से लेके के बी पॉइंट तक के हर पॉइंट के लिए आपको बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा और बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से आप उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और वो ट्रेस किया हुआ डायग्राम आप चाहे तो फिर स्ट्रक्चरल एनालिसिस के ग्रुप के ऊपर शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, जितने भी लोग चाहें। अगर एक बंदे ने किया है तो आप अपना शेयर कीजिए, अगर किसी और ने कोई अलग तरीके से किया है, कुछ अलग पॉइंट को रेफरेंस लिया है तो वो भी अपना डायग्राम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम अगर आप में से कोई बनाता है और शेयर करता है तो इट विल बी अ गुड नॉलेजेबल थिंग फॉर अस टू सी एंड अंडरस्टैंड कि बेंडिंग मोमेंट कैसे वेरी करता है, ठीक है, कहाँ पे पॉजिटिव आता है कहाँ पे नेगेटिव आता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू दिस। आई होप दैट यू हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे regarding the arches, and in the next session we will solve 2 more problems related to arches, okay, जिसमें एक सिमेट्रिक रहेगा एक अनसिमेट्रिक प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। सो प्लीज कीप योर नोटबुक्स, कैलसीज एंड एवरीथिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट सेशन on the next Thursday when we are going to meet, and at that time we will consolidate this particular module, okay. Thank you everyone.